जी consultant Shri Bhatia ji. Bhatia ji, are you there here? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. So actually KPMG is also collaborating with our Higher Education Bureau, but they have also suggestions for the AISHE, improvement of AISHE, which Secretary has told them to just see. So as an experience, I thought that they may also join here. So they will get a feel of the ground level problems that the institutes are facing. And in that way, they can customize their in 22-23, whatever improvements we can think of. So very welcome to Mr. Bhatia ji. And State Nodal Officer is Veena Madam is there. So without taking much time, I am leaving the floor to our Assistant Director and experts. And Madam, you you do one thing, you please regulate the questions. Let everybody mute their mics and they may start one by one, and like that. And today's conference is very, it has come at a very correct time, because our now endeavor is to complete this 21-22 survey period by 20th January. So I think it can be done. It is not difficult. So we are also planning that for Haryana, we will come physically also. And whatever problems you are having, we can resolve it physically in a meeting. Also, our experts will be deputed for that. So with this, a few words. So you need not be panicky that suppose if anything is not resolved, you can contact Veena ji and we are coming personally also, say end of December or early January, something like that. So with these few words, I am leaving the floor to our participants, and please have the system of coming one by one. All the doubts will be resolved. Most of the doubts will be repetitive only, and we will also give some basic sort of clarifications that everybody needs through email. Also, I will be sending by email. Okay, then Shivam and Mr. Praveen, Dr. Praveen, you may take over the floor. Madam, you please conduct it one by one. Now institution can start. You can ask question one by one. Good morning, all of you. Hello. Anji. बोलिए sir. Hello, good morning. Good morning. Here it is S967. Sir, when we are adding in the details of department, Anji. we have the mechanical engineering, tool and die, and one automobile also. Okay. The details of department is added, but when we are going through the details of program, then only mechanical is showing, not the tool and die and the other one, automobile. Sir, you please explain full name of program. Program name is a Bachelor of Technology. So subject full name of in government polytechnic माने sir diploma. Diploma. So program name is only for diploma. You mention the diploma, not subject. Tools and technology is a subject, not a program name. So आपको प्रोग्राम ने सिर्फ प्रोग्राम का नेम मेंशन करना है, न कि सब्जेक्ट का नाम. तो प्रोग्राम में सर ये ऐसा है ना, जैसे सिविल का आ जाता है अलग से, मैकेनिकल का आ जाता है, लेकिन नहीं, उसमें सर बहुत डुप्लीकेशन है. इसका हो रही थी एक इंस्टीट्यूशन को जिनका पास टोटल डिप्लोमा में 50 ही फॉरगेट करके 500 कर दिए. तो उसमें प्रोग्राम में सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिखना है, ना कि सब्जेक्ट का नाम लिखना है. तो प्रोग्राम नेम अगर डिप्लोमा है तो सिर्फ डिप्लोमा मेंशन करें.
अच्छा, तो उसमें अलग अलग से ब्रांच की जरूरत नहीं है सर? नहीं सर, उसकी ब्रांच की जरूरत नहीं है। आपका इंस्टीट्यूशन को सीट डिप्लोमा के लिए मिला है कि डिप्लोमा में आप 50 सीट करवा सकते हैं या 100 सीट का डिप्लोमा है इंटेक, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका इनरोलमेंट देंगे और उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसको बाइफर्केशन नहीं करेंगे। थैंक यू। Excuse me, Good sir. morning, sir. यस Sir, सर। good morning. Sir, hello. Hello. Sir, may I? Hello, sir. हाँ जी बोलिए। Okay, sir. हेलो। Hello. हाँ जी, हाँ good जी मैम morning, बोलिए। sir. Okay, sir. सर मैं CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक से डॉक्टर रेणु नांदल बोल रही हूँ। मैम आईसे कोड क्या है आपका इंस्टीट्यूशन का? आईसे कोड बता दीजिएगा। आयशा कोड। यस सर। मैडम आयशा कोड बताइए। SR कॉलेज रोहतक। मैडम आपका आयशा कोड बताइए। मैम आयशा कोड बता के अपना प्रॉब्लम डिस्कस करिए प्लीज। Sir, good morning. ओके, टेक अनदर। Sir, good morning. Dr. मेरी Punit Kumar. इंटरनेशनल वर्कशॉप है। हेलो। हेलो, हेलो। SR कॉलेज रोहतक। वो अटेंड हाँ कर जी, रही हूँ। CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक। सर आयशा कोड इज 265। बाकी लोग अपना माइक हाँ। म्यूट कर लीजिए ना। हाँ मैडम, ओनली CR कॉलेज रोहतक वही बोलेगा, बाकी सब माइक कर दो। सर 28265। S265। सॉरी सर, C 28265। C8265। यस मैम। हाँ आप जी बताइए मैम क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आप? सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे बीएड मैंने इसमें प्रोग्राम में भरा, जी तो हमारा 2 ईयर प्रोग्राम है सर ये। ओके मैम। तो 2 ईयर ना लेके सर ये मंथ ले रहा है, वो फिल नहीं कर रहा है, वहां पर आगे चल ही नहीं रहा कर सर। कहाँ पे मैम, कहाँ पे? नहीं मैम, प्रोग्राम जो जहाँ पे आप एंट्री कर रही हैं वहाँ वो पे प्रोग्राम ड्यूरेशन आता है, तो वहाँ पर आप 2 ईयर मेंशन करेंगी। उसके वहाँ बाद नहीं सर हमारे पास एमएड और बीएड दोनों हैं। तो हाँ। बीएड हमारा गवर्नमेंट एडेड में है और एमएड हमारा प्राइवेट एडेड इसमें जा रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग में। मैम उसका कोई इशू नहीं है, वो जब आप प्रोग्राम नेचर में डिफाइन करेंगी तो वहाँ पर बोथ लिखेंगी कि सेल्फ फाइनेंसिंग एंड जो आपका जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो देंगे। सर वो मैंने फिल कर दिया आगे। हाँ। सर इसमें क्या है कि बीएड में 2 ईयर नहीं ले रहा है, ये वही प्रोग्राम में ही नहीं ले रहा आगे, जब ईयर मांग रहा है। बीएड और एमएड दोनों कंबाइंड है कि दोनों इंडिविजुअल है? दोनों इंडिविजुअल है सर। हाँ तो मैम तब लेगा अंडर ग्रेजुएट में आप एक मिनट में हम आपको DCF ओपन करके आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके सर, मैं अभी साथ में DCF ओपन कर लेती हूँ। मैम आप स्क्रीन पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हेलो। मैम आयशा कोड आपका क्या था? 28265 ना? हाँ जी 28265। CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यस सर। यस मैम। मीना मैम स्क्रीन शेयर को अलाउ करना। मीना मैम। बीना मैम। बीना मैम प्लीज बी ऑन द माइक। मैडम आप माइक पे रहिए। नहीं वो साथ में मॉनिटर।
हेलो मैम, बाकी लोग प्लीज स्विच ऑफ माइक। मैम अभी तो आपने प्रोग्राम ही सेव नहीं कर रखे 28265 सीआर कॉलेज ऑफ हाँ एजुकेशन। जी सर, मैम आपने तो प्रोग्राम ही सेव नहीं कर रखे अभी। प्रोग्राम सर मैंने दोनों प्रोग्राम आ रहे हैं। सर वो आए हुए ये आगे चल ही नहीं रहा ना, इसलिए नहीं हो पाए। मेन प्रॉब्लम तो यही है सर। नहीं मैम, तो आगे चले जब ना, जब आप इनको सेव करेंगे या तो आप ऐड कीजिए या न्यू सेव कीजिए। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव की मैंने सर, बिल्कुल। ऐड करने लगी तो इसमें आगे चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा मैम? बेसिक को आपने सेव किया, उसके बाद आपने ऑफिसर डिटेल को सेव किया, देन हाँ एड्रेस आया, देन रेसिडेंशियल आया, उसके बाद लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आया, तो डिपार्टमेंट को आपने सेव लॉक करा ही नहीं। सर किया, अब आगे चल तो नहीं आप रहा किसी- यही। नहीं मैम, क्यों नहीं? हम लोग चेक कर पा रहे हैं, आपने लॉक किसी भी टैब को नहीं किया है। ओके सर, मैं साथ साथ देख रही हूँ। बेसिक से मैम शुरू कीजिए, बेसिक डिटेल से, और सारे टैब्स को सेव एंड लॉक कीजिए साथ साथ। नहीं लॉक तो नहीं करना सर, साथ में लॉक कर दूंगी तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे हम। अनलॉक कर लीजिएगा ना, लॉक अनलॉक स्टेटस वाले पेज से, वहां से अनलॉक हो जाएगा। और वन गो के अंदर आपको सारे लॉक करने पड़ेंगे ना जब आप चल रहे हो तो। ओके हाँ जी, लॉक अनलॉक स्टेटस वाला पेज जो है वो इसी के लिए तो है। सर एसएल अरोड़ा व्यास कॉलेज। हाँ यस सर। सर कोड है 10569 10569। 10569 यस सर। जी सर। ये कॉलेज नेम बताइए प्लीज। हमारे यहाँ बीकॉम 3 कोर्सेज हैं, बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम टैक्स। एक मिनट सर। सर मेरे ऑडियो हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है सर? सर व्यास कॉलेज करनाल से बोल रहा हूँ। हाँ कोड है 10569। बताइए सर। 10569। जी सर। हाँ सर बताइए सर, क्या फेस कर रहे थे? हमारे यहाँ बीकॉम के जी सर। आपके ड्रॉप डाउन ऑप्शन जी। में तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाता है बीकॉम की। हाँ सर, क्योंकि सर प्रोग्राम जो आप यूजीसी का लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर एक ही प्रोग्राम है जैसे बीकॉम। एक एडिड में है, 2 सेल्फ फाइनेंसिंग में है। सर वो सारे को कंबाइंड फिल करेंगे। कंबाइन करके बहुत कर दें। हाँ सर, वहाँ पर बीकॉम कंबाइन करेंगे। जब यहाँ पे फाइनेंसिंग में जाएंगे उसका नेचर में वहाँ पे बोथ कर दें फाइनेंस और गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक सेकंड। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो टीचर्स की जब इंफॉर्मेशन भरने लगते हैं तो वो लॉक्ड आती ना, वो आती है कि लॉक्ड है ऑलरेडी, जबकि हमने अभी इसको छेड़ा ही नहीं है। वो इस कारण है सर कि उसके पहले के सारे फील्ड को आपने लॉक नहीं किया है। नहीं किया। पहले से उसको लॉक करेंगे तो वो चूंकि डिपार्टमेंट से लिंक होता है, डिपार्टमेंट जब तक लॉक नहीं होंगे आपको बताएगा कि लॉक ही है। पहले डिपार्टमेंट फिल करके लॉक करिए। एक बार उसको लॉक कर दें। हाँ सर। अगर बाद में कोई चेंज हुआ, कुछ हुआ तो लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे सर लॉक अनलॉक का मैंने स्टेटस ऑप्शन दे दिया उसको समझिए। मैं थोड़ा शेयर करूँगा। मैंने आपका नाम चीजें समझ में आएंगी। ये सर देखिए यहाँ पे लॉक अनलॉक का है सर। तो जो भी लॉक किए हैं अच्छा, वहां से हम अनलॉक कर लेंगे। यहाँ देखिए एक्शन में यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, फिर इसको अनलॉक करना है तो इसको हम अनलॉक कर देंगे यहाँ से जाके। ठीक है। फाइनल सबमिशन से पहले आप कभी भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि बीकॉम का जितना भी हमारा होगा, चाहे वो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो एडमिशन है, वो फिर हम तीनों कंबाइन करके भरें। हाँ सर। ठीक है। और जो टीचर इंफॉर्मेशन वाली बात हमारी लॉक आ रही है, वो जब इसको लॉक करेंगे तो आगे वो ठीक हो जाएगी। जैसे डिपार्टमेंट आप प्रोग्राम आप लॉक करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर शो करेगा। ठीक है सर। अच्छा, इसकी सर सबमिशन की लास्ट डेट क्या है?
20 जनवरी 20 जनवरी है सर, बट वेट मत करिए सर 20 जनवरी का, जल्द जितना हम जल्द से तो जल्द कर लीजिए। सर हम तो ट्राई करेंगे विद इन दिसंबर में भी और भी जल्द, मतलब बहुत जल्द कर देंगे, पर फिर भी एक बार आइडिया होना चाहिए। सर नमस्कार, सीपेट मुरथल से बोल रहे हेलो हैं। नमस्कार सर। ठीक है सर, थैंक यू हेलो प्लीज वन बाय वन, नमस्कार सीपेट वन बाय मुरथल, सर, नमस्कार डॉक्टर प्रवीण कुमार। सीपेट मुरथल, आशा कोड S932 S932 यस सीपेट सर, मुरथल S932 2। यस सर। सर आशा कोड 932 है, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारा, जी जब प्रोग्राम्स डिटेल में जाते हैं, हाँ सर मेरे पास टोटल 4 प्रोग्राम है, 2 डिप्लोमा प्रोग्राम है, जी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एक पोस्ट डिप्लोमा। तो जब डिप्लोमा प्रोग्राम 3 इयर्स के जो दोनों हैं, हाँ इनमें एक तो ये कॉलम नहीं आता सब्जेक्ट ऑब्लिक डिसिप्लिन वाला। जी डिप्लोमा प्रोग्राम में लेवल क्रेस करते हैं, डिप्लोमा ही सिलेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ सर, वो डिप्लोमा ही आएगा, उसमें सर सब्जेक्ट लेवल नहीं आते हैं सर। मतलब सब हमारा ना डिप्लोमा का नाम नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, एक डीपीएमटी कोर्स है, एक डीपीटी है। हाँ सर, वो तो उसमें डिप्लोमा का नाम नहीं आइडेंटिफाई होगा, आपको दोनों को कंबाइंड ही भरना होगा सर। तो दोनों का फिर हम बच्चों का एनरोलमेंट भी कंबाइंड ही भरे हाँ सर, और उनका रिजल्ट भी कंबाइंड भरे। हाँ सर। सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एनरोलमेंट पे गया हूँ, आप एक बार अगर लॉगिन करें मेरे को, तो उसमें देखिए फर्स्ट ईयर का मैंने डाला एक मिनट, एनरोलमेंट, लेकिन सेकंड ईयर जब ऊपर सेलेक्ट करके एनरोलमेंट करता हूँ तो वो लेता ही नहीं है, वो आएगा सर। और एडिट भी नहीं होगा, उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, हटा के करेक्ट करना सर वो। स्क्रीन पर दिख रहा है सर आपका इंस्टीट्यूशन? नहीं सर अभी नहीं आया सर, अभी हेलो जी सर, सर हमारा ना जो स्टूडेंट एनरोलमेंट एक है मिनट सर, उसमें सब्जेक्ट नहीं सर दिखा रहा है, हिंदू गर्ल्स कॉलेज जगाधरी फ्रॉम। सर एक बार डिस्प्ले करिए स्क्रीन पे, क्लियर हो जाए। सीपेट मुरथल जी सर बताइए। हेलो हाँ जी सर। सर हमारा कोड है C-1088। एक मिनट सर, थोड़ा देख लीजिए। होल्ड ऑन S932। हाँ सर, अब आप बताइए, आप स्टूडेंट एनरोलमेंट आपका अभी लॉक नहीं है। देखिए सर स्टूडेंट एनरोलमेंट सर में अब देखिए सर, यहाँ पे हाँ ऑटोमेटिक सर, ईयर लिखा आ रहा है, जबकि 3 ईयर का प्रोग्राम है ये। एक कितना है सर? इसमें सर ये 3 ईयर का है, देखिए हमने प्रोग्राम में 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है, यहाँ ऑटोमेटिक 2 ईयर लिख के। एक मिनट सर, तो आप यहाँ पर जाइए पहले जहाँ प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं। कर तो दिया हमने लॉक, ये सर हमने लॉक कर दिया सर ये। देखिए सर, हेलो 3 ईयर है दोनों प्रोग्राम पहले वाले, और वहाँ डिटेल में कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक 2 हो जा रहा है। ठीक ठीक। हाँ सर, देखिए डिप्लोमा आपका आ रहा है 3 इयर्स का। हाँ सर 3 ईयर ड्यूरेशन। हाँ, अब स्टूडेंट एनरोलमेंट में गए, डिप्लोमा। देखिए ड्यूरेशन ऑटोमेटिक। अच्छा सर हमारे तो आ नहीं रहे सर ये चीज। हेलो एक मिनट सर, देख हेलो लॉक कर तो ठीक दिया है है। सर, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे सर। आपका प्रोग्राम हम लोड कर रहे हैं सर, हम आपसे डिस्कस कर लेंगे सर। सर हमारा स्टूडेंट एनरोलमेंट सर नमस्कार सर। ऐड क्लास नहीं आ रही है सर। हेलो सर नमस्कार सर। डॉक्टर प्रवीण कुमार। हेलो हाँ हाँ, हेलो हेलो स्टाफ हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। लॉक अनलॉक के बाद भी एडिट नहीं होता सर डाटा इसमें। सर लॉक अनलॉक के बाद जैसे यहाँ पर लॉक है, सर यहाँ पर हम जब लॉक है पहले हम इसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद डेटा एंट्री होगा सर। हेलो जी मैम। हेलो नमस्कार सर, हिंदू गर्ल्स कॉलेज जगाधरी से ही बोल रही हूँ। हमारा एसके कोड C-10888 है। सर हमें ना प्रॉब्लम स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले टैब में आ रही है। हमने डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम लॉक किए हुए हैं, बट स्टूडेंट एनरोलमेंट में हमारा शो ही नहीं हो रहा, डिसिप्लिन सब्जेक्ट पे क्लिक ही नहीं हो रहा है। एक मिनट मैम, आपका आईसी कोड क्या बताइए मैम? C-10888 हिंदू गर्ल्स कॉलेज जगाधरी। एक
That is assertive technology. Yes, assertive technology. Assertive, that paper is called assertive technology. So that is some innovation and some technologies like that. This came last month, we forwarded to Rajesh. यस मैम, हिंदू गर्ल्स कॉलेज। हाँ जी, हिंदू गर्ल्स कॉलेज जगाधरी। हाँ मैम, आपका मैम इसका नहीं होगा कि पहले आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ऊपर के टैब इसको लॉक करिए, उसके बाद वो आगे एक्सटेंड होगा मैम। सारे काम करवाएंगे सर एक मिनट चेक कर बेसिक इन्फॉर्मेशन। हाँ देखिए मैम, सर नमस्कार। सर कर रहे हैं लोग। हेलो नमस्कार सर। मैं रुक जाओ जगाधरी वाला इन प्रोग्रेस। मेरा कोड है हाँ जी। 28160। सर 10/628। मैम 2 मिनट अभी हमारा चल रहा है। 2 मिनट रिक्वेस्ट है आपसे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ मैम सर देखिए, अभी भी नहीं हो रहा, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लॉक कर दी है, उसके बाद डिपार्टमेंट है प्रोग्राम भी लॉक है। हाँ खाली आपका डिपार्टमेंट लॉक है, प्रोग्राम लॉक है, बेसिक का चारों टैब आप लॉक करिए। ओके राइट सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़। उसके बाद में सारे फिर वो एडिट हो जाएंगे, उसमें फिर कोई चेंज नहीं अच्छा होगा। ओके सर, लेट इट चेक। यदि कोई प्रॉब्लम होगा मैम आप कॉल कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर मैं अग्रवाल कॉलेज नमस्कार सर। बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा कोड है प्रवीण कुमार जी। हेलो हेलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते सर 10/628 सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन हिसार। 10 then 10628 C10628। यस मैम, बताइए मैम। सर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं हम, क्रेडेंशियल्स जो है ना वो रॉन्ग बता रहा है सर हमारा। तो मैम एक बार आप यूजर आईडी आप अपना जाके चेक कर लीजिएगा, या सर वो सर जो लास्ट ईयर जो भरा था वही है, सेम है सर, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। 10628 C-10628। हाँ जी, T28 सर, 628 सर। कॉलेज का नाम सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन हिसार सर। सर आपका नोडल ऑफिसर थे। यस सर। ये आपका एक्टिव है, और यस सर। आपका यूजर आईडी जो है CRCOE यस सर, हिसार, यस ये है सर। मैम। और ये हाँ जी। आपका यूजर आईडी वगैरह है। अगर आपका ईमेल आईडी चेंज है तो आप करके फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए, और बाकी आपके काम करेंगे मैम। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विनीत नागपाल बोल रहा हूँ अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से। जी सर। मेरा कोड है C28160। वैश कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक। हेलो डॉक्टर निधि। हाँ जी सर, C28160। 28160। हाँ सर बताएं सर। सर हमारा क्या है, जैसे हमारे ना 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ। एक है बीबीए, एक है बीबीए कैंप। जी। तो यहाँ पे पहले तो हम बीबीए डाल के कर लेते थे, तो उनकी हाँ। ऑप्शन थी नहीं। तो अब वो कह रहे डुप्लीकेट प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ले रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, और ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है सर, कोई और ऑप्शन ही नहीं है सर। आपका सर बीबीए का पूरा एक ही आएगा सर। सर लेकिन प्रोग्राम अलग अलग है ना सर। सर वो जो आपका अलग है वो सब्जेक्ट है सर, वो प्रोग्राम अलग नहीं है सर। प्रोग्राम आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही एक प्रोग्राम है सर। ये दोनों प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, अलग नहीं, एक नहीं है सर। जैसे एक है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, तो हम और बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये 3 प्रोग्राम है, इसको हम एक थोड़ी मान सकते हैं। प्रोग्राम सर बीकॉम ऑनर्स ही होता, बीकॉम ही होता है। ओके। तो प्रोग्राम ही आपको भरना है, बाकी जो उसमें कंप्यूटर ट्रेड और
जो भी आप अलग से जो ऐड कर रहे हैं वो प्रोग्राम नहीं है सर, प्रोग्राम का नेम वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट था। सर फिर कहीं सब्जेक्ट की ऑप्शन नहीं आ रही ना कि हम उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें? नहीं सर, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करिए, उसको पूरा कंबाइंड ही भरिए, वो प्रोग्राम एक ही है सर। जैसे हमारे कॉलेज में 22 प्रोग्राम्स हैं, तो अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो वो तो 18-19 रह जाएंगे। जैसे सर हमारे कॉलेज में 22 प्रोग्राम्स हैं, अगर मैं मर्ज करूंगा तो वो 19 रह जाएंगे। सर तो वो 19 वो तो उसी तरह जैसे आप यहाँ पर दिए हैं बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स, ये दो ही प्रोग्राम है। इसको फिर बाय सब्जेक्ट बाइफरकेट मत करिए, बाय सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं होती है, क्योंकि बच्चे लेकिन हम तो अभी तक नहीं नेक में पढ़ते दे रहे हैं या हम ये उसमें दे रहे हैं NIRF में, वो तो हम 22 प्रोग्राम दे रहे हैं, यहाँ मर्ज कर देंगे तो कम हो जाएंगे ना। नहीं तो आप NIRF में भी गलत दे रहे हैं, वो वहां भी मत दीजिए उस तरह से। जैसे ये आप देखिए अंडर ग्रेजुएट में कॉमर्स आप 2 को लिखे हैं, कॉमर्स तो एक तो डुप्लीकेट ही होंगे ना, प्रोग्राम तो एक ही है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स। नहीं सर, एक नहीं है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स और ऑनर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 अलग अलग प्रोग्राम है, सबकी अलग अलग डिग्री होती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री अलग तो नहीं आती, बीकॉम की आती है ना? नहीं मैम, बीकॉम विद सीए आती है, ब्रैकेट में लिखा होता है विद सीए। तो सर वही कह रहे हैं, प्रोग्राम बीकॉम ही आती है ना सर? हाँ जी डिग्री तो एक ही आती है, पर इसमें प्रोग्राम ऑनर्स ही आती है या बीकॉम ही आती है, उसकी अलग नहीं आती है, वो तो सब्जेक्ट अलग आप मत करिए सर। अलग डिग्री आती है उनकी, अलग है सब कुछ, डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन तो मेंशन होता ही है सर, इसी से मेंशन डिग्री में होता ही है सर। डिग्री में मेंशन सब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब प्रोग्राम अलग नहीं होती है, प्रोग्राम एक ही है सर। ऊपर प्रोग्राम अलग लिखा आता है, BBA जनरल एक में लिखा रहा है, मैनेजमेंट तो अलग अलग हो गया ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सर इवन हायर एजुकेशन के अप्रूवल के लिए भी हम लोग स्पेशलाइजेशन मेंशन करके देते हैं। स्पेशलाइजेशन मेंशन करते हैं या जो भी करते हैं आप, अगर प्रॉब्लम है तो आप UGC को से कांटेक्ट करिए, लिखिए कि क्या बैचलर ऑफ कॉमर्स में 5 सब्जेक्ट है, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स क्या 5 प्रोग्राम गिनाएगा कि 1 आएगा? अगर वो वहां से आपको अलाउ करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर, ईयर ऑफ स्टार्ट तो डिफरेंट है तीनों का, एक ही कोर्स है मैम। ईयर ऑफ स्टार्ट डिफरेंट है जो भी है, लेकिन जो भी आपको सबसे पहले स्टार्ट हुआ उसको वही आप मेंशन करिए और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को मेंशन करिए। सर यही सर हिंदू गर्ल्स कॉलेज जगाधरी से बोल रही हूँ मैं। हेलो सर, वो सेम प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। हम लोगों ने लॉक कर दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन मेरी लॉक है, सब लॉक कर दिया, बट उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है वो उसमें हमारा सब्जेक्ट डिसिप्लिन नहीं शो कर रहा। ओके मैम। शिवम पांडे जी, गर्ल्स कॉलेज जगाधरी C-10888। हेलो शिवम पांडे जी। हेलो जी सर। हेलो हाँ जी मैम। यस सर, हिंदू गर्ल्स कॉलेज जगाधरी से अभी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन सारा लॉक कर चुके हैं, बट उसके बावजूद जो हमारा स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला ऑप्शन है वो उसमें हमारा डिटेल शो नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट हमने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वही रखे हैं, वो हमारे लॉक हैं जी मैम, बट स्टूडेंट एनरोलमेंट नहीं हो रहा। कोड फिर से बताइएगा सर। कोड है C-10888। टेस्ट ही नहीं है। हाँ मैम देखिए, स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले में दिक्कत आ रही है सर। यहाँ पे आपने कोई अभी प्रोग्राम एंट्री नहीं किया है मैम, पहले प्रोग्राम एंट्री करिए। शीशा खराब हो जाए। प्रोग्राम हमारे डिटेल ऑफ डिपार्टमेंट एवरीथिंग इज मेंशन एंड इट इज लॉग एंड डिटेल ऑफ प्रोग्राम इज ऑलरेडी मेंशन एंड इट इज लॉग, बट स्टूडेंट एनरोलमेंट इट इज नॉट शोन एनीथिंग। ओके मैम, बस यही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो हमारा ठीक है। हमने डिपार्टमेंट्स वगैरह सब कुछ वो मेंशन कर रखे हैं। जी मैम ठीक है मैम, आप डिस्कस कर लेंगे मैम।
सर ये प्रोग्राम कैन आई सेंड द मैसेज? अलग से मैसेज डाल सकती हूँ? हाँ मैम, हेलो, हम आपको अलग से मैसेज डाल देंगे। ठीक है सर कॉन्टैक्ट नंबर। सर नमस्कार, सर नमस्कार। गुड 62,950 सर। स्टाफ डिटेल एडिट नहीं हो पा रही सर, अनलॉक करने के Sir, बाद। please share the contact number in the WhatsApp group so that if we found any kind of the problem, we can call you personally or can text personally. Can text personally, sir. Please share your WhatsApp number. Hello. हाँ सर, गुड मॉर्निंग। बेस्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक। गुड मॉर्निंग मैम। सर माई कोड इज, हेलो सर। जी मैम। हाँ जी सर, माई कोड इज C32597। बेस्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक। यस मैम। सर हमने इसके अंदर ना अपना नोडल ऑफिसर जो है वो उसकी ईमेल आईडी अपडेट की थी। पोर्टल पे तो वो अपडेट दिखा रही है, लेकिन सर जो मेल है वो अभी भी जो पुराने नोडल ऑफिसर हैं उसी के पास ही जा रही है, नए मेल पे नहीं आ रही। मैम उसके लिए यहाँ पर एक यूजर मैनेजमेंट है, आप यहाँ पर जाके उन जो यहाँ पर देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है जब आप लॉगिन करती हैं तो हाँ जी, यहाँ पर एक एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। ओके सर। और यहाँ जाके सारे जो क्रेडेंशियल है आप चेंज करके सबमिट करेंगे तब आपका ईमेल आईडी चेंज होगा। ठीक है ना? एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाके हाँ, यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, एक क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है जब तक आप चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा। वो सर हम कर चुके सर, OTP हमारे मेल पे भी आ गया और इवन हमारे पास ये भी आ गया कि आपका सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बावजूद भी सर पुराने वाले नोडल ऑफिसर पे मेल जा रही है। तो मेल आपने चेंज नहीं किया होगा ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर नहीं सर, ईमेल आईडी भी चेंज कर चुके हैं। अब जैसे यही वर्कशॉप का जो मैसेज था वो मेरी ईमेल आईडी की बजाय पुराने नोडल ऑफिसर के ईमेल पे गया है। आपका कोड कॉलेज है मैम? हाँ जी। आप C- से बोल रही हैं? कॉलेज कोड बताइए। एजुकेशन रोहतक से कोड है हमारा 32597। ओके मैम, कॉलेज हो गया, स्टेट हरियाणा। बात थी। हाँ जी। किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है मैम? हेलो, MDU रोहतक। अच्छा, अच्छा वहाँ महर्षि दयानंद। अच्छा MDU रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। तो घूम भी आए, ठीक है। ऊपर Kindly rest of the people can mute their mic. हेलो, नमस्कार सर। हेलो हेलो हो गया। सर नमस्कार, गवर्नमेंट कॉलेज पिल्लूखेड़ा से सर। हेलो, ये बीकॉम से रिलेटेड क्वेरीज हैं, आपने काफी सॉल्व कर दी हैं। पर ये बताइए कि जैसे साइंस में तो अभी भी ये मेडिकल और नॉन मेडिकल अलग अलग ले रहा है, जो भी आपको लगे ना। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो, ये बीकॉम का आपने मर्ज करने के लिए बोला है, वो ठीक है, पर मेडिकल BSc में तो मेडिकल नॉन मेडिकल अभी भी अलग अलग है। हेलो, और लास्ट ईयर्स में हम लोग बीकॉम अलग अलग भरते रहे हैं, तो अब मर्ज कर दें। हेलो, हाँ जी मैम बताइए। सर हेलो, ये जी बताइए। सर ये आपने बीकॉम को बोला ना कि बीकॉम को मर्ज कर दीजिए, जैसे ऑनर्स है ये अलग अलग नहीं दिखाता वो। हेलो सर। पर साइंस में तो अभी भी मेडिकल नॉन मेडिकल अलग अलग है। BSc है ना वो भी, उसमें हम अलग अलग भर रहे हैं सर। सर साइंस के अंदर तो ऑप्शन है वो। हाँ, पर बीकॉम का हमने लास्ट ईयर तक तो अलग अलग ही भरा था, लास्ट ईयर तक एक्सेप्टेबल था। बीकॉम ऑनर्स का? बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स। सर लास्ट ईयर डिसिप्लिन ऑब्लिक सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट बुक सर जो कि एडिट वहां आप मेंशन कर रहे थे, ऑप्शन लास्ट ईयर भी सेम ही थे।
नहीं सर, उसमें कोई option तो चेंजेस same नहीं थे। हुए हैं। सेम थे, पर वो तीनों अलग अलग एक्सेप्ट कर रहा था। हमने जैसे एक एडिट एक्सेप्ट में इसलिए कर रहा था ना कि वहां हमने एक एडिटेबल फील्ड दी थी, इसका नाम था डिसिप्लिन ऑब्लिक सब्जेक्ट, पर अब की बार हमने यूजी कोर्स के अंदर हमने वो चीज नहीं दी है। चलो अब ये फाइनल हो गया कि बीकॉम वाले हम मर्ज कर दें। जी सर बिल्कुल। ठीक है, और बीएससी वाले अलग रहने दें। हाँ सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। सर जीसी रिठौत से बोल रहे मैम वन बाय वन क्वेरी रेज कीजिए। सर गवर्नमेंट कॉलेज के लोग सर। हेलो सर नमस्कार। सर डॉक्टर निधि मेल के रिगार्डिंग क्वेरीज और मेरी थी ना अभी। हेलो हेलो बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अरे यार ऐसे हेलो से तो बात बन। हेलो हेलो जी, C32,596 डॉक्टर कृष्ण कुमार, वेस्ट कॉलेज भिवानी। सर ये जो बीकॉम से संबंधित एक जो मर्जिंग का जो सवाल आ रहा है, इसमें बीकॉम सीए और बीकॉम एएसएम 2008 के बाद शुरू हुए और ये वोकेशनल कोर्सेज हैं। बीकॉम जनरल है, ये जो है वोकेशनल नहीं है, तो क्या इनको भी मर्ज कर दें? हेलो जी, C32,596। हेलो हेलो जी, C32,596 वेस्ट कॉलेज भिवानी से बोल रहा हूँ, डॉक्टर कृष्ण कुमार। बीकॉम सीए और बीकॉम एएसएम ये 2008 में शुरू हुए वोकेशनल कोर्सेज हैं। बीकॉम जनरल और बीकॉम एसएफएस जनरल, इनको तो हम मर्ज कर सकते हैं क्या? इनको वोकेशनल और इनको भी मर्ज कर दें क्या? जी सर, वोकेशनल वाले दोनों को मर्ज कीजिए। वोकेशनल दोनों मर्ज कर दें और बीकॉम जनरल को मर्ज कर दें, तो एक कोर्स में इनको ये कनेक्ट हो जाएंगे। जी सर ठीक है, ओके, थैंक यू। सर C62,950 सर C62,950 62,950 जी सर। बताइए। सर ये स्टाफ डिटेल इंफॉर्मेशन एक बार लॉक कर दी थी सर हमने, फिर अनलॉक करने के बाद डाटा एडिट नहीं हो रहा सर इसमें। स्टाफ डिटेल की बात कर रहे हैं सर? हाँ जी सर। स्टाफ डिटेल के लॉक अनलॉक वाले पेज पे जाइए, वहां से अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक तो वहाँ तो पेंडिंग दिखा रहा है सर, लेकिन अगर फिर एडिट कर रहे हैं तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा सर। जब मैं आगे ये करवाएंगे 11 बजे, मतलब एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कोई। एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था जी जी सर। एक बार आप उस पे जाइए। लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आपने लॉक कर रखा है? आदमी बैठेंगे यार। लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कर रखा है सर भी, ये 2 ही कोर्स है हमारे पास सिर्फ। बीना मैम स्क्रीन शेयर को अलाउ करना एक बार। बीना मैम स्क्रीन शेयर को अलाउ करना एक बार। ये सर 1 बाय 1 लॉक करके आगे वाली डिटेल एडिट होंगी, या मतलब बाद में सारे हम लॉक कर सकते हैं इकट्ठे? सर हो गया ओके स्क्रीन शेयर का? हाँ जी। हेलो हेलो सर। सर एक मिनट रुक जाइए। जी सर, अपना C62950 राइट? जी जी सर। स्क्रीन शो हो रही है सर? नहीं सर, स्क्रीन शो नहीं रही। अब हुई सर? अब हो रही है। हाँ सर, आपका कहना ये है स्टाफ डिटेल्स वाला सर। सर इसके अंदर तो आपका कोई भी लॉक हो ही नहीं रखा ना? पहले ऊपर वाले लॉक करने पड़ेंगे सर सारे। बिल्कुल सर, ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना सर। जैसे कि आपने बेसिक कोई भी टैब आपका लॉक नहीं हुआ रखा। अच्छा ना बेसिक, ना डिपार्टमेंट, ना प्रोग्राम। सेव तो सारे हो रखे हैं सर। उसका रीजन सर मैं बताता हूँ ना। जब स्टाफ डिटेल के अंदर आप जाते हैं तो हम वहाँ डिपार्टमेंट लेते हैं, तो यहाँ आपने डिपार्टमेंट सेव लॉक फिक्स ही नहीं कर रखे, तो ड्रॉप डाउन में वैल्यू आपको क्या शो करेगा? वो सेव करे थे सर, ये लॉक जैसे कि 2 डिपार्टमेंट आपने कर रखे हैं, इसको आप सेव करके लॉक कर दीजिए।
अच्छा क्योंकि वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंट वाइज जब आप स्टाफ की डिटेल देते हैं तो वो जब तक इनेबल नहीं होगा ना, जब तक यहाँ पे आप फिक्स नहीं करेंगे कि आपके इतने डिपार्टमेंट है। अब मैं स्टाफ डिटेल पे जाऊंगा तो ये देखो इनेबल्ड हो गई। हाँ जी हाँ। ये सर ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे डिपार्टमेंट का, तो ये तभी इनेबल होता है जब लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट लॉक होता है, या आप फिक्स कर लेते हो कि आपके इतने ही डिपार्टमेंट हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, गवर्नमेंट कॉलेज रिठौत से बोल रही हूँ। हेलो नमस्कार सर, सर गवर्नमेंट कॉलेज रिठौत से बोल रही हूँ। बोलिए मैम, बोलिए। हेलो सर, मुझे ये पूछना है कि जो हम फाइनल रिजल्ट डालते हैं तो वो रिजल्ट हमें सेमेस्टर वाइज डालना है या सर ओवरऑल रिजल्ट डालना है हमें? मैम सेमेस्टर वाइज नहीं, ईयर वाइज होता है ना रिजल्ट तो। ओके सर, और सर जो एनरोलमेंट है हमारी स्टूडेंट एनरोलमेंट, वो सिर्फ हम फर्स्ट ईयर की डालेंगे या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की कंपाइल? हर ईयर प्रोग्राम वाइज हर ईयर की डालेंगे ना, तीनों साल की। ओके सर, वो टोटल एनरोलमेंट डाल दें हम? जी ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। सर 5 4 टाइम 9। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, 1 बाय 1 कर लीजिए। हेलो सर 5 4 टाइम 9 जीसीजी कैरू। सर थोड़ा सा तेज बोलिए। सर सी 5 टाइम 9 जीसीजी कैरू। आयशा कोड बताइए सर। 5 4 टाइम 9। 5 4 टाइम 9। ओके। जीसीजी कैरू। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स। यस सर। बताइए दिक्कत क्या है सर? मेन इशू ये है सर, लास्ट टाइम हमने क्या 2 ही प्रोग्राम भरे थे रेगुलर, ठीक है, हमारे पास बी और बीकॉम ही है। इस टाइम ये 3 दिखाया लास्ट टाइम, और अब की बार जब 2 लोग किए तो फिर ये रेड मार्क कर रहा है। सर 2 ही प्रोग्राम तो, भी दोनों प्रोग्राम में दिक्कत क्या है? पिछली बार सर 3 दिखा रहा था, हमने भरे 2 ही थे। अच्छा, अब की बार तो सर 2 ही है ना? अब की बार ये ना देखना रेड मार्क कर रहा है ये, तो एक तो ये इशू है डैशबोर्ड पे। कोई इशू नहीं डैशबोर्ड का सर, डैशबोर्ड का कोई इशू नहीं है सर। ओके। और सेकंड सर, जो एससी बीसी के स्कॉलरशिप का डाटा है, आप कहते हो कि 31 दिसंबर तक दिखाओ। 31 दिसंबर 2021, राइट सर। हाँ, और हमारे पास सेशन सर इंटायर ईयर का होता है, मार्च वाला, तो हम कैसे करें सर वो उस चीज को? कब तक का डेटा है आपके पास? डेटा हमारे पास होता नहीं सर, लेकिन जो बच्चे अप्लाई करते होते हैं हमारे पास पोर्टल पे डिटेल आ जाती है कि इतना डिस्पर्स हो चुका है, नथिंग मोर। नहीं सर, एडमिशन आपने कब तक के करे हैं? एनरोलमेंट जो आप शो कर रहे हो कब तक का कर रहे हो? हम क्या है ईयरली करते हैं सर एडमिशन। तो ईयरली कब तक? ड्यूरेशन तो होगी ना सर? सर जुलाई जैसे 21। हेलो हाँ सर, एडमिशन बंद कब होते हैं? बंद सर जनवरी में भी हो सकते हैं, दिसंबर में हो सकते हैं, जैसे अभी हुए थे बंद, दिसंबर 21 में बंद हुए थे अभी। तो जो 21-22 के थे वो कब बंद हुए थे बताओ? दिसंबर 21 में हुए थे सर। दिसंबर में? हाँ सर। हाँ, तो तब तक का एनरोलमेंट डाल दो ना फिर 31 दिसंबर तक का। वो एनरोलमेंट तो डाल दिया सर, मैं एससीबीसी का डाटा की बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप का। वो भी सर सेम जाएगा? वो भी सेम जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। तो मतलब पूरे इंटायर ईयर का, क्योंकि हम स्पेशली कोई डाटा ऐसे मेंटेन नहीं करते कोई भी, बस क्या है कि जितने बच्चों ने एनरोल किया है ना, हम उसको वेरीफाई करके आगे डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं। फर्दर जो डिसबर्स होता है वो ईयरली ही होता है, ना कि कोई डेट बाउंड होता है वो। सर ऑन डेट 31 दिसंबर जितने लोगों का अप्लाई हो गया सर, आप उन्हीं का शो करेंगे ना? ओके, बस सिंपल यही, और कोई इशू नहीं है। नहीं सर। सर नमस्कार। सर ठीक है सर, थैंक यू। 28319 28335। एक मिनट सर, अब बताइए सर। सर 28335 283839 28335 28335। पहले ये सर इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ इंफॉर्मेशन है जहाँ पे। एक मिनट सर, चेक कर लेते हैं। हाँ सर बताइए, क्या इशू आ रहा है? सर इसमें ये ग्रुप समझ में नहीं आ रहे हमें, जैसे कौन सा ग्रुप? नॉन टीचिंग इंक्लूड लाइब्रेरी एंड स्टाफ लिखा हुआ है, उसके सामने ग्रुप डी ए किस स्टाफ को? हाँ, ये ग्रुप सर ग्रुप ए का वो स्टाफ होते हैं जैसे रजिस्ट्रार वगैरह हो गए जिनकी ग्रेड पे 10,000 होती। जी। ग्रुप बी में वो ऐसे स्टाफ होते हैं जो डिप्टी रजिस्ट्रार के इक्विवेलेंट होते हैं। जी सर। और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ग्रुप सी और डी में सर उनसे जो नीचे वाले जो होते हैं वो सारे मेंशन किए जाते हैं।
तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके यहाँ जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो जी। किस लेवल के हैं, ग्रुप बी कैटेगरी में आते हैं, सी में आते हैं, डी में आते हैं। जी ओके सर ओके। उनका ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होता है सर। 5400 से ऊपर वाले जो होते हैं ना जी जी वो सब बी में होते हैं, और जो सर 8700 से ऊपर होते हैं वो सब ए ग्रेड में होते हैं। ओके सर और उनके नीचे वाले जो है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेरी। नमस्कार सर। सर वैश कॉलेज रोहतक से। हाँ जी बताइए। ऐश कोड इज C28370। C28370। यस सर। सर बेसिक इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स हमने फिल कर दिए। उसके बाद जब हम स्टूडेंट एनरोलमेंट पे जाते हैं हाँ जी तो सर स्टूडेंट एनरोलमेंट में जैसे मैंने सबसे पहले एमकॉम अपना कोर्स लिया, उसका फर्स्ट ईयर का डाटा भरा। बिल्कुल। उसके बाद सर मैं नीचे ऐड अभी आपने एनरोलमेंट तो फिल किया ही नहीं है ना मैम? सर सुनिए तो सही क्या दिक्कत आ रही है एनरोलमेंट फिल करते टाइम। बताइए। सर जैसे मैंने एमकॉम फर्स्ट ईयर का ये यहाँ से सिलेक्ट किया ईयर। एक मिनट मैम, एमकॉम ले लिया, फर्स्ट ईयर ले लिया, बताइए। हाँ ले लिया। फिर फर्स्ट ईयर का डाटा मैंने जब फिल कर दिया उसके बाद मैंने सेव किया। नीचे कोई एंट्री नहीं आ रही थी, मुझे लगा शायद सारी कलेक्टिव आएंगी। फिर मैम मैंने जीरो की एंट्री कर दूं, आप अपडेट कर लोगे? आपके सामने अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर विजिबल है। मुझे अगर जीरो की एंट्री सेव करिए मैंने, मैम नीचे देखिए जीरो की एंट्री आ गई, आप इसे एडिट कर लीजिए यहाँ से, और सेम पैटर्न से आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा सेकंड ईयर के लिए, है ना? सर लेकिन फिर जब नीचे जब आ रहा है, एक मिनट, हाँ अब तो 2 और 1 आ गया सर। मेरा जैसे 2 आया हुआ है तो आप स्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए, फर्स्ट ईयर भी आएगा। यहाँ पे आप एनरोलमेंट अपडेट कर देना आपका कितना है, एडिट में जाके यहाँ एनरोलमेंट अपडेट कर देना कि आपका फर्स्ट ईयर कितना है, सेकंड ईयर कितना है ना मैम? और ऐसे ही हर ईयर के लिए आपको सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सर नमस्कार। ठीक है नमस्कार। नहीं सर नहीं कह सर एक मिनट रुक जाइए मैम की क्वेरी। सर एक सेकंड, जब मैं सेकंड ईयर का डाटा मैं भर चुकी हूँ, फर्स्ट ईयर का डाटा ये आपका कैसे आया? ये मेरा तो नहीं आ रहा। मैम एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए आप। अच्छा स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। ओके सर ओके सर। एक बार करिए। सर 28319 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर विजिबल हो गया? रिफ्रेश करके तो दोनों ही चले गए सर जी। रिफ्रेश करके तो दोनों ही का डाटा चला गया। सेकंड ईयर का भी। मैम आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कीजिए अपने क्रेडेंशियल से, तब आप चेक कीजिए। मैंने यहाँ से दोनों ऐड कर रखे हैं। ओके सर पोर्टल पे दोबारा रिफ्रेश करना है। हाँ पोर्टल, आप अपने पोर्टल को लॉगिन करके साथ में अलग टैब के अंदर दूसरे टैब में आप पोर्टल को लॉगिन करके चेक कीजिए। ओके सर थैंक यू सर। है ना? इसको आप अपडेट कर देना, नमस्कार इसको एंट्री करती है जो एनरोलमेंट एक्चुअल में होगा वो आप डाल देना इसमें, है ना? ठीक है सर ठीक है सर। ठीक है नेक्स्ट बताइए। नमस्कार सर। प्रवीण कुमार गवर्नमेंट कॉलेज मांडलिया जी। सर एक मिनट सर इसके बाद आपकी क्वेरी लेंगे। बिल्कुल मैडम बताइए। सर हमारा कोड है C10783। C10783 783 बताइए दिक्कत क्या आ रही है? सर यूजर क्रेडेंशियल इनकरेक्ट आ रहा है सर मेरा। यूजर क्रेडेंशियल देखिए, जितने भी यूजर हैं जिनको यूजर क्रेडेंशियल इनकरेक्ट आ रहा है उनके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको इंस्टीट्यूशन लॉगिन पे जाना है। जैसे कि ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जी, ये है इंस्टीट्यूशनल यूजर, है ना? यहाँ पे आपको जाना है। जितने लोगों के लिए इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल का इशू आ रहा है, ठीक है जी, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, अपना यूजर आईडी डालिएगा, कोड डालिएगा, वेरिफिकेशन कोड डालिएगा। इसके बाद अपने ईमेल और मोबाइल को ओटीपी से वेरीफाई कीजिए, अपना पासवर्ड रीसेट कीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिए, तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। ओके ओके सर थैंक यू। ठीक है थैंक यू सर। हाँ जी नेक्स्ट बताइए। डॉक्टर प्रवीण कुमार गवर्नमेंट कॉलेज मांडलिया बताइए। हाँ सर आयशा कोड है जी 60941। हाँ सर बताओ। सर एक तो प्रॉब्लम ये है कि टीचिंग जो स्टाफ है वो 4 से ज्यादा ऐड नहीं हो रहा है हमारे। क्या सा दिक्कत आ रही है? टीचिंग जो स्टाफ है वो 4 से ज्यादा ऐड नहीं हो रहा है। टीचिंग स्टाफ 4 से ज्यादा ऐड नहीं हो रहा। मेरी वर्कशॉप चल रही है। हाँ जी ठीक है क्यों सर? कोड बताओ सर अपना एक बार। हाँ बस ये एक कोई नहीं, चलो देख लेना जैसे भी करती हूँ। कोड बताओ सर, कोड एक बार। 60941। 60941। हाँ जी
स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। GCG हरिया मंडी। हाँ जी। हाँ सर। इसमें टीचिंग स्टाफ में जब हम फिल करते हैं तो 4 स्टाफ मेंबर दिखाता है जी। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी आएंगे, ऐड करेंगे, आ जाएंगे। बताइए सर, अभी तो कितने हो रहे हैं? अभी 5 हैं आपके। सर हमें 4 दिखाई दे रहे हैं सर। सर अब मेरे सामने सर 5 आ रहे हैं ना, 4 तो आपके ग्रीन हो गए, आपने अपडेट कर रखे थे, एक को आपने अपडेट नहीं किया हुआ तो रेड आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ चेक कर रहे हैं सर? डेजिग्नेशन वाइज सेंशन स्ट्रेंथ तो नहीं चेक कर रहे? मैं इसमें करंट ईयर जो करके इसमें कर रहा हूँ जी। अभी सर 5 स्टाफ की डिटेल आ रही है आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर। अगर कोई न्यू एंट्री है सर तो ऐड न्यू टीचिंग स्टाफ को बटन पे क्लिक करके अपनी एंट्री फिल कर दीजिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, है ना? हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। सर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, तो ऐसे ही अपना ऐड कर लीजिए, उसके बाद नीचे जाके सेव कीजिएगा, लॉक करके प्रोसीड कीजिएगा, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। एक प्रॉब्लम ये भी है सर, जैसे कॉलेज का जो नाम है, जैसे GCG हरिया मंडी है, ये जब एस्टेब्लिश हुआ तब तो यही नाम था, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया सर। ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज मंडी हरिया। हाँ। तो ये चेंज करवाना है, तो ये कैसे करवाएं सर? सर? चेंज करवाना है तो अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को बोलिए, या यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर को बोलिए, या मिनिस्ट्री को आयशा हेल्प डेस्क पे मेल कीजिए नेम करेक्शन के लिए अपने एफिलिएशन लेटर के साथ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। पहला ऑप्शन सर ये है कि आप UNO से करवा सकते हैं चेंज। दूसरा ऑप्शन आपके पास है SNO से करवा सकते हैं चेंज। ठीक है सर। तीसरा ऑप्शन सर आपके पास ये है कि आप मिनिस्ट्री से करा सकते हैं, पर हमें वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। 21 का एफिलिएशन लेटर चाहिए आपका, और एक रिक्वेस्ट लेटर आपके लेटर हेड पे कि आपका नेम करेक्ट होना है। ओके सर, ओके। हेलो सर, नमस्कार सर। 2839 से बोल रहा हूँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट, एक वन बाय वन कर ही लेते हैं, इसके बाद आपकी ले लेंगे। आप बताइए। हाँ सर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गोहाना से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर, कोड क्या है आपका? सर एश कोड है 28299 28299। 28299 सर हमारे बताइए सर, क्या दिक्कत आ रही है? सर हमारी स्टाफ इंफॉर्मेशन है जो फिल करते हैं ना सर, वो पेज लॉक दिखाता है। सर मैंने सबसे पहले यही क्वेरी बोली थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं क्या बोला था? स्टाफ डिटेल के अंदर हम पहला लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट का जो ड्रॉप डाउन है वो यूज करते हैं। तो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जब तक आपका सेव लॉक नहीं होगा तब तक पेज आपका इनेबल नहीं होगा स्टाफ इंफॉर्मेशन का। ठीक है सर? सर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट हेलो सर, आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव लॉक नहीं किया है, आप सीधे के सीधे स्टाफ इंफॉर्मेशन पे आप चले गए हैं। आप वहां सीधे स्टाफ डिटेल अपडेट करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले आपको बेसिक सेव करना पड़ेगा, फिर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट को सेव लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टाफ पे आएंगे। हेलो, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। हेलो नमस्कार सर। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। गवर्नमेंट कॉलेज सर आरडीएन अर्जन सेवा स्कूल ऑफ नर्सिंग से बात कर रहे थे जी। कोड बताइए अपना। हेलो S20869। जी हेलो S20869। 20869 जी, बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर ये लॉगिन इंग्रेडिएंट का अभी आपने बताया था, बट वो उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद में यूजर आईडी और वो डाला, बट वो वेरीफाई यूजर हो नहीं रहा, यूजर वेरीफाइड। ओके, एक मिनट लाइन में रहिए। जी सर। मैम आप नोडल ऑफिसर हैं, आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं डेटा? हाँ जी सर, ये जो नोडल ऑफिसर है वो अभी एब्सेंट चल रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पे। उनके एब्सेंस में मैं ही करती हूँ। मैम आयशे हेल्प डेस्क पे आप अपना जो फोन नंबर है वो आयशे कोड के साथ अपनी क्वेरी मेंशन कीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। आयशे-helpdesk@nic.in, राइट? हेलो, हेल्प डेस्क पे करना है सर। हाँ, एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा, है ना? ठीक है सर। और ये मेंशन कर देना कि मीटिंग में आपकी क्वेरी ये थी कि आपका पासवर्ड जो था वो रीसेट करने के इशू आ रहा था, आपने मीटिंग में भी डिस्कस किया था। आयशे कोड मेंशन करना, अपना फोन नंबर मेंशन करना, क्योंकि आपकी डिटेल्स मैं यहाँ से निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम यूजर है ना। ओके सर, ये हेल्प डेस्क पे जो ये दे रखी है SHI-helpdesk@nic.in। हाँ, इसके व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से भी ब्लॉक होगा, आप सीधे ईमेल कर दीजिए।
ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर सेम प्रॉब्लम आ रही है, फॉरगॉट जो भी अभी आपने बताया था, फॉरगॉट पासवर्ड करके ना हो नहीं रहा, तब भी कोड बताओ, कोड सर यही 10783 अभी किया था मैंने सर, क्वेरी 10783। हाँ जी हाँ जी, सी फॉरगेट C10783। ठीक है, अभी आप भी एक मेल ड्रॉप कीजिए अपने आयुष्य कोड के साथ में, बोलिएगा कि उसमें मेंशन कीजिएगा कि ये डिस्कस हुआ था इस मीटिंग के अंदर, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। अपना पर्सनल नंबर जो है आपका ऑफिशियल वाला, वो आप उसमें मेंशन कीजिएगा, सो दैट हम कॉल बैक कर पाए आपको। सर ओके सर, आई एम न्यू नोडल ऑफिसर है सर, इस वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम। जी, जो भी इशू होगा वो सॉर्ट हो जाएगा मैम, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी क्या बताइए सर? अभी मैंने पूछा था 10628 सर हमारा ऐसे कोड है, और सर मैं ना डैशबोर्ड पे तो लॉगिन कर पा रही हूँ। नहीं, 10 क्या कोड है आपका, बताइएगा एक बार। 10628 10628 यस, स्टैंडअलोन है। सी हाँ जी, हेलो 10628 यस सर। सीआर कॉलेज, हाँ बताइए। हाँ जी सर, इसमें ना मैं डैशबोर्ड पे तो लॉगिन कर पा रही हूँ, लेकिन जब DCF पे क्लिक करती हूँ ना, तब फिर दोबारा से वो क्रेडेंशियल्स मांगता है, उनको रॉन्ग बता रहा है सर। क्या बता रहा है? अच्छा, आप दैट मींस आपका कहना ये है, आपका कहना ये है कि पुराने पोर्टल पे आप लॉगिन कर पा रहे हैं पर नए पे नहीं कर पा रहे हैं ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्टेप भी बताए थे ना सबको कि इंस्टीट्यूशनल के आप फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, वहां से कीजिए, यहाँ से आप लॉग आउट कर लीजिए। ओके सर, क्योंकि जो आप पोर्टल एक्सेस कर रहे हैं वो पुराना पोर्टल, जो इंस्टीट्यूशनल यूजर है आपको वहां से आप एक बार फॉरगेट पासवर्ड करके सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो चेंज हो गया, फिर वो क्या प्रोसीजर रहेगा आगे? आप अपना आयशा को इसके एक मिनट ड्रॉप की हेल्प डेस्क कोड के साथ में, उसमें जो करेक्ट फोन नंबर होगा वो मेंशन कीजिएगा, सो दैट हम आपको कॉल कर पाएं। ठीक है सर, ठीक है। लोगों को मैं बिल करने को बोल रहा हूँ, ये सारे लोग 1 बजे से हो जाए और जो भी इशू सॉल्व हो जाए, है ना? थैंक यू सर। आज से पहले जैसे जो कि यूनिवर्सिटी से जिनका एफिलिएशन नहीं होता, ये नेशनल बोर्ड होता है, वहां के थ्रू होते हैं, तो जब भी हम पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ MD-MS का ही ऑप्शन आता है, DNB का या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं आता सर। सर एक बार अपना कोड बताओगे? 30714 सर। 30714 जी सर। DCF देख पा रहे हैं आप अपना? हाँ जी सर। आप अपना DCF देख पा रहे हैं? सर मैं अभी तक नहीं, आप जरा DCF जरा ओपन करें। मैंने सर स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप देख पा रहे हैं? हाँ प्लीज, आप मैं देख रहा हूँ। हाँ दिखाइए, हाँ करिए, ओपन करिए। खोल रखा है। हाँ इसमें जो है आप जो नहीं सर, डिटेल ऑफ प्रोग्राम में अभी तो आपने कोई प्रोग्राम सेव करा ही नहीं है इसमें सर। हमने ये जो PG प्रोग्राम है सर, इसमें हमारा MD-MS का ऑप्शन आता है सर। MD-MS? जी हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे ENT का है तो उसमें DNB है सर, तो उसमें हम क्या भरेंगे, क्योंकि इसका यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन नहीं है, ये तो सेंट्रल बोर्ड है सर। ये लेवल क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट PG? ये पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर माना जाता है, हालांकि वैसे तो ये इसकी मान्यता MD-MS के बराबर ही है, लेकिन जो है लेवल क्या हुआ सर? हाँ जी सर, लेवल इसका हुआ क्या? PG डिप्लोमा हुआ? नहीं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ? सर इसका लेवल तो वैसे तो माना जाता है इसके इक्विवेलेंट टू MD-MS के बराबर माना नहीं सर, अकॉर्डिंग टू द UGC क्या होता है? अब सर हमारा तो सर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारा UGC से नहीं है सर। अच्छा जी, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वैसे तो DNB करने के बाद भी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर के लिए एलिजिबल मानती है सर। तो सर फिर भी उसका लेवल क्या है? PG के इक्विवेलेंट कोर्स है कि UG के इक्विवेलेंट है? मैं सर बता रहा हूँ सर, PG के ही इक्विवेलेंट है सर। MBS करने के बाद ही DNB करते हैं सर। हाँ ये अच्छा, ये MD तो आते हैं जी, MD तो आता है। हाँ MD-MS तो आ रहा है, लेकिन सर एक और कोर्स है जिसको कहते हैं DNB, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड सर। सर अगर वो नहीं है तो उसका एप्लीकेशन साथ में जो मेडिकल काउंसिल का लेटर लेके आप भेजिए सर, उसको ऐड कराना होगा। उसको क्या करना होगा सर? हमें सर ऐड करना पड़ेगा। हमें ऐड करना होगा तो सर जो मेडिकल काउंसिल का जो लेटर होगा किस प्रोग्राम की मान्यता है, तो
वो लेटर होगा वो आप हमें मेल करिए, फिर हम उसको ऐड कराएंगे तब होगा। तो सर आप कृपया मेल आईडी मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? मैंने अपना मेल आईडी aisha-helpdesk@nic.in सर aisha-helpdesk@nic.in मैं चैट बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ ये चीज। आप मैं जिनके कांटेक्ट में वो मिस्टर अशोक कश्यप जी हैं जो पंचकुला में बैठते हैं, तो क्या मैं उनको अपना ये भेज सकता हूँ सर? हाँ सर, किन्हीं को भी आप दे सकते हैं, आप इनको पर चैट बॉक्स में सर मैंने मेल आईडी शेयर कर दी है। आज 1 बजे से पहले आप मेल कर दीजिएगा, है ना? आज 1 बजे से पहले मैं हाँ सर कर दूं, so that आपकी क्वेरी आज ही रिजॉल्व हो जाए। सर आयशा हरियाणा पे मेल कर दीजिए। और सर एक क्वेरी सर, और पिछले साल का जो हमारा जो डेटा है टीचिंग स्टाफ का, उसमें कुछ तो इरेज हो गया ऐसा लग रहा है और कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जबकि ऐसा तो नहीं था पहले तक सर। इस बार ये स्टाफ डिटेल की बात करें, आपका टोटल स्टाफ जो आ रहा है सर वो आ रहा है 25 की स्ट्रेंथ आ रही है सर। लेकिन सर ये बहुत कम है सर, ये पहले ज्यादा था सर, हमने तो पहले पूरा भरा हुआ था सर। हेलो तो सर अभी तो करंट में सर आपका इतना ही आ रहा है, अभी आपको इसके बाद एंट्री लेकिन सर ये गलत है, लेकिन सर ये गलत है, तो फिर सर मुझे दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी सर। सर कितना स्टाफ है हमारा? सर मोर देन 75 है सर। मोर देन 75 सर, अभी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना आपको, करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल सर पिछले ईयर आपने 75 का एंट्री किया था? हाँ सर। अगर पिछले ईयर में आपने किया तो सर हम चेक करके फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे सर कि क्यों नहीं आ रहा है। सर गवर्नमेंट कॉलेज खरखड़ा। राइट सर, राइट सर, हेलो राइट सर। थैंक यू सर। गवर्नमेंट कॉलेज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। C28319 C28319 अब बोल रहे। यस सर, सत्येंद्र सिंह गवर्नमेंट कॉलेज खरखड़ा से। 28319 ईमेल आईडी है। हाँ बताइए क्या हो रहा है? जो स्टाफ का डाटा भरते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा लेक्चरर का डाटा भी भरना है हमें। इसका तो डेजिग्नेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड है सर, उन सबका डेटा डालना है। नहीं, एक्सटेंशन लेक्चरर का भरना है तो किसमें भरना है? टेम्परेरी, एडहॉक, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्चुअल? सर वो तो आपको पता होगा सर कि आप उनको किसके अकॉर्डिंग रखते हैं। एक और ये था कि जो एक्सपेंडिचर में जो आपका ये होता है स्कॉलरशिप का डाटा है, ये जब इंचार्ज से कहते हैं तो ये कहते हैं हमें नहीं पता कितने स्कॉलरशिप मिली है सर। अकाउंट में जाती है। दूसरा का डेटा जो वहां पर देना है, वो जो भी आपके रिकॉर्ड होंगे वो आप मेंशन करिए, पता हो कितने बच्चे को मिला है, कितने को जीआरएफ का मिला है, वो सारे स्कॉलरशिप को कंबाइन देना है, कंबाइन करके। ठीक है सर, ओके। हेलो हाँ जी गवर्नमेंट कॉलेज नागौर मैम, 1 मिनट सर की क्वेरी ले ले फिर आपकी ले। एक मिनट सर बताइए। स्कॉलरशिप का हमने भरना है 1 जनवरी 2021 से और 31 दिसंबर 2021। नहीं सर, डेट तो मेंशन है ना सर, सारे मॉड्यूल्स में डेट मेंशन है, आप देखिए एक बार। सर मेंशन तो है। हाँ जो 1 जनवरी 2021 चला गया 2021 में। और हमारा सर सेशन है जो जुलाई टू। प्लीज बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, पीछे से वॉइस आ रही है। हेलो हेलो सुन पा रहे? हाँ सर। सर स्कॉलरशिप का डाटा है, एक्चुअली हमारा जो सेशन चलता है ना सर, जुलाई टू जून चलता है सर। जैसे जुलाई 20 टू जून 21। अब सर जो आपने ऊपर ये मेंशन किया है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, तो ये डाटा है ना सर स्कॉलरशिप का, सर 2 सेशन कब रह जाएगा फिर? सर एज ऑन डेट जो आपका होगा सर जून में तो फिर जी 31 दिसंबर 2021 को जो आपका एनरोलमेंट होगा सर, आप वही मेंशन कीजिए फिर। ओनली सर एनरोलमेंट भरना है ना, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है बच्चे के खाते में जाती है, हमें मालूम नहीं सर। सेम चीज जो एनरोलमेंट होगा वही सर स्कॉलरशिप भी होगी। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला होगा वो सारे भरिए, नेक्स्ट अगर आएंगे वो नेक्स्ट ईयर में डालिएगा। ओके, मतलब मैं जो डाटा लूँ वो 1 जुलाई 21 से
31 दिसंबर 21 तक का लें स्कॉलरशिप का डाटा। हाँ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सर जो आपने हमें लास्ट डेटा दिया था जहां तक का, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे ना? पिछली बार 31 दिसंबर 2020 तक का दिया था आपने, अब 31 दिसंबर 2021 तक का देना है आपको डेटा। सेशन 2 बन जाते हैं ना सर? हाँ, तो वो सर आपने लास्ट डेटा कहाँ तक का दिया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे ना? चलो सर ठीक है। लास्ट का डीसीएफ आप डाउनलोड कीजिए, जो आपने फिल किया था वहां आप चेक कीजिए कि आपने कितना डेटा दिया था, फिर वहां से चेक करके आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी दीजिए। दे नहीं सकते ना, वो फिर गलत हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं केएल मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से बात कर रही हूँ सर। जी बताइए। सर हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमारे कॉलेज में 16 प्रोग्राम्स हैं। हाँ जी। तो सर जो लिस्ट जैसे ऐड करना चाहते हैं, 3 प्रोग्राम्स हमारे जो हैं लिस्ट में शो नहीं हो रहे। लास्ट ईयर भी थे वो प्रोग्राम्स, लेकिन इस साल वो लिस्ट में शो नहीं हो रहे। मैं ऐड करती हूँ तो उस पे एक विंडो, ऐड प्रोग्राम में विंडो ओपन होती है जिसमें लेवल 1 पे हम अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर रहे हैं। देन नेम ऑफ द प्रोग्राम, जब हम नेम ऑफ द प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट डिस्प्ले होती है जिसमें प्रोग्राम्स के नेम है। तो उस लिस्ट में वो 3 प्रोग्राम्स के नेम नहीं आ रहे हैं सर। कौन से प्रोग्राम है मैडम? सर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। मैम इसमें जो भी प्रोग्राम है सिर्फ बीकॉम आएंगे और बीएससी आएंगे। इसी में सबको आप कंबाइंड फिल करिए। अच्छा, तो सर फिर जैसे हम बीकॉम को 3 बार सेलेक्ट करते हैं, जैसे 2 हमारे एसएफ के, बीकॉम को एक ही बार सेलेक्ट करिए और जितने जो बीकॉम के जो सब्जेक्ट वाइज जो आपके बाइफरकेशन है सबको कंबाइंड फिल करिए। अच्छा, तीनों को मतलब तीनों की स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर दे। दोनों 3 बीकॉम है तो तीनों की स्ट्रेंथ को ये इकट्ठा कर दीजिए और जितने बीएससी है सबको इकट्ठा करके एक साथ फिल करिए। अच्छा, जैसे सर हमारे 2 बीकॉम के एसएफ के अंदर आते हैं सेल्फ फाइनेंस के और एक एडेड है, तो सर हम फिर उसके इसमें क्या जो करें? जहाँ पे फाइनेंसिंग है ना उसमें आप बोथ कर दीजिएगा, सेल्फ फाइनेंस और जो आपके गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है उस दोनों को कंबाइन करिएगा, वहाँ पे बोथ मेंशन कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, गवर्नमेंट कॉलेज। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो 3554। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेरी है कि लास्ट ईयर जो हमारी AISHE की साइट है उस पे DCF का ब्लैंक PDF था, अब की बार नहीं है। मैम आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगा, PDF भी अवेलेबल हो जाएगा, एक्सेल भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ जी। गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल C55624। C55 684 624। हाँ जी। गवर्नमेंट कॉलेज। स्टूडेंट एनरोलमेंट में, हाँ जी, स्टूडेंट एनरोलमेंट में ड्रॉप डाउन मेन्यू वर्क नहीं कर रहा है। अभी तो आपने सेव ही नहीं करी स्टूडेंट एनरोलमेंट। सर क्या इशू आया बताइए। दूसरी बात तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी लोग हैं मेरे, तो ऐड न्यू एंट्री से स्टार्ट करना है क्या सभी? नहीं तो यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन में, स्क्रीन आप चेक कीजिए, अब स्क्रीन पे आपको विजिबल है। नहीं, ये ओपन ही नहीं चल नहीं रहा था सर, डिसिप्लिन और सब्जेक्ट। हाँ डिसिप्लिन सब्जेक्ट पहले आप सिलेक्ट कीजिए, इसमें ईयर सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट ईयर आ रहा है। सर मेरे जब मैं स्क्रीन पे लॉगिन कर रही हूँ तो वहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट वाला मेन्यू वर्क नहीं कर रहा। हाँ जी सर, कुछ दिखाई नहीं रहा, मतलब क्लिक ही नहीं हो रहा, उस पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है मैम? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए सामने आ रहा है, या आप दूसरे सिस्टम पे ट्राई कीजिए, नेट स्लो हो सकता है थोड़ा सा। ऐड न्यू एंट्री पे आप जाएंगे तभी आपको शो होगा ना। ये तो ये ऐड न्यू एंट्री का बटन है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन में डिसिप्लिन सब्जेक्ट आ जाएंगे, आप वहां से ईयर सेलेक्ट कीजिए और ऐड का बटन दबा के नीचे आ जाएगा, आपकी एंट्री आ जाएगी, रोज जनरेट हो जाएगी। ठीक है,
ये बटन है ना मैम, इस बटन का यूज कीजिएगा, ऐड न्यू एंट्री का, है ना? थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। नेक्स्ट क्वेरी। एनी अदर इशू? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर माई सेल्फ डॉक्टर मंजू सरोहा। जी बताइए। सर नोडल ऑफिसर यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। हाँ सर हमारी प्रॉब्लम ये है सर, एक्चुअली हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी के ही अंडर 3 कॉलेजेस थे, और लास्ट टाइम नेक की क्वेरी के अकॉर्डिंग हमने उन्हें अपने में एज अ डिपार्टमेंट मर्ज किया था, और उसके लिए हमने सारा जो फॉर्मेलिटी थी, मेल करना या प्रूफ साथ लगाने, वो सब कर दिए थे सर। ठीक। लेकिन अभी तक सर वो कुछ भी हमारे पास उसका कोई रिस्पांस नहीं आया है कि वो मर्ज हुए हैं या हम कैसे प्रोसेस आगे पहले करें। उनका डीसीएफ एप्लीकेबल था कि नहीं था जब वो ऐड हुए थे? वो सेपरेटली ऐड हो रखे हैं ऐसे पोर्टल पे? जी डीसीएफ एप्लीकेबल था उनका पोर्टल पे, उनके आईडीपी थी, तीनों की अलग अलग डीसीएफ अप्लाई करते थे वो। अच्छा, तो अब यूनिवर्सिटी फिल कर रही है उनका? जी ठीक है, तो वहां से जाके आप चेकबॉक्स अनचेक कीजिए, वहां पे डीसीएफ एप्लीकेबल को अनचेक कर देंगे तो हो जाएगा। उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर यूनिवर्सिटी फिल कर सकती है उनका डेटा। लेकिन सर कि वो हो चुके हैं या नहीं, या क्योंकि वो वहां से शायद डिलीट या जैसे भी होना है वो एक्चुअली उसके कोई भी रिगार्डिंग कोई वो अपडेट। एक मिनट में कॉलेज सर्वे है बीसी के एडिट में जाओ। मैम आयशा कोड बताना किसी भी एक इंस्टीट्यूट का। सर जो वो 3 इंस्टीट्यूट है हाँ, उनका किसी एक का बता दो। एक मिनट सर अभी बताती हूँ। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी का तो U0157 है सर। नहीं, यूनिवर्सिटी का नहीं चाहिए ना मैम, कॉलेज का। एक यूनिवर्सिटी कौन सी है मैम आपकी? सर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। भगत सिंह जी। मैम कोड बताइए, में से देख के कौन सा कोड है? आपके 9 इंस्टीट्यूशन आपके अभी हैं ऐड है। सर ये जो इसमें बीपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, बीपीएसएम गर्ल्स कॉलेज है, और ये एमएसएम आयुर्वेदा। हाँ मैम 3 कॉलेज हैं। जी हाँ, तो तीनों का भी तो डीसीएफ एप्लीकेबल आपने चेंज किया ही नहीं है कुछ। यहाँ से मैम चेंज कर दीजिए और इनको जाकर परमानेंटली क्लोज भी कर दीजिए। सर इनको कैसे करना है एक बार आप बताएंगे यहीं से? मैम आफ्टर मीटिंग हम आपको कांटेक्ट करें इससे रिलेटेड? जी बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। मैम यूनिवर्सिटी का कोड बता दो आप अपना। हमारा सर यूनिवर्सिटी का U0157। 157 ठीक है मैम, आफ्टर दिस मीटिंग हम आपको कांटेक्ट करते हैं फिर। जी सर। और मैम यहाँ से आप जाके क्लिक कर चेक कर लीजिएगा, यहाँ डीएफिलिएशन है डीएफिलिएशन जी। यहाँ पर आप सर्वे ईयर सेलेक्ट करिएगा और वो तीनों को जाकर डीएफिलिएट कर दीजिए। जी। यहाँ से आप क्रेडेंशियल फिल करके उसको कर दीजिए। आफ्टर दिस मीटिंग में आपको कांटेक्ट करता हूँ मैम। ठीक है सर, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेरी? Queries, I am from GCW शहजादपुर। जी बताइए। सर हमारा ना इस साल एक न्यू कोर्स शुरू हुआ है, हमने मेल भी डाली है, एंड इट इज कॉल्ड बीकॉम वोकेशनल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ जी, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है मैम। वो वहाँ पे हम चेक तो पूछते तो हैं कि वेदर वोकेशनल कोर्स यस और नो, तो प्रोग्राम तो आपका वही रहेगा, वोकेशनल आप चेक कर दीजिए उसमें। अच्छा, सिर्फ वोकेशनल को ओके कर दें? हाँ, वोकेशनल को ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोग्राम आपका वही रहेगा। अच्छा, नहीं लेकिन वो ड्रॉप पूरा अगर नाम आ जाए तो इट वुड बी बेटर। नहीं मैम, नेम तो पॉसिबल नहीं है ना मैम यूजी के लिए, तो फिर सारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो सारे मेंशन है ही वहाँ पे। इट इज अ पार्ट ऑफ बीकॉम ओनली। बीकॉम कोर्स जो है ना, तो उसके 2 पार्ट्स हो गए। एक तो बीकॉम 5 पेपर सेम है, और ये जो बीकॉम वोकेशनल है, बीकॉम वोकेशनल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर वो नाम आ जाए ड्रॉप डाउन में तो इट वुड बी बेटर। मैम कोर्स के नाम नहीं आते हैं मैम, सब्जेक्ट का प्रोग्राम का ही नाम होगा। प्रोग्राम तो बीकॉम ही है ना, उसको वोकेशनल में क्लिक कर दें। ठीक है। दूसरा हमारा प्रोग्राम तो बीकॉम हुआ ना, प्रोग्राम भी तो वहाँ अवेलेबल है।
अच्छा ठीक, वहाँ वोकेशनल चेक कीजिएगा बस, है ना। ठीक है, तो वो हम वोकेशनल क्लिक कर दें उसमें। वेदर हाँ वोकेशनल जी, ठीक है। कोर्स के अंदर यस अच्छा कर दूसरी दीजिएगा ड्रॉप चीज ये डाउन में थी कि बस। जैसे हमारे वोकेशनल को यस कर दें, ओके। वोकेशनल यस और होगा जो आपका उसके नंबर और जो उसके स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं हाँ वोकेशनल को यस कर देंगे, चलो तो उसमें स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं उसके हाँ। लिए हम DCF में। जी, अपना कोड बताइएगा मैम एक बार। ठीक है, चलो कोई और क्वेरी हुई तो दोबारा पूछ लेंगे। हमारा है जस्ट ए मिनट। मैं अपना कोड बता दिया, कोड क्या था। हाँ मैं बता रही हूँ, एक सेकंड एक मिनट मेरे को वो नंबर जो है, एक मिनट, हाँ जी ये हमारा है कोड। कहाँ चला गया, रजिस्ट्रेशन करने भेजा तो था मेरे को स्टाफ। एक मिनट मैं इसमें से कोड हमारा, एक मिनट में ना उसमें से खोल के बताती हूँ आपको, मेरे को इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा नंबर। अच्छा दूसरा हमारा साथ साथ में क्वेरी भी बता देती हूँ आपको, जो हमारी क्वेरी है। क्वेरी हमारी ये है सेकंड के, जैसे अब पहले एडमिशन जब होती है तो कुछ बच्चे ओपन में आते हैं, तो SCBC उसमें भी आ जाते हैं। तो आपका जो आता है उसमें क्या होता है कि उसमें AISHE, एक मिनट में साथ में कोड भी ढूंढ रही हूँ ना आपका। मैम ओपन और रेगुलर दो अलग अलग कोर्स हैं, तो ओपन का आप ओपन में भरेंगे, रेगुलर का रेगुलर में भरेंगे। और सेकंड थिंग, कॉलेज है कि आप यूनिवर्सिटी है मैम? कॉलेज में तो ओपन का कोई प्रावधान ही नहीं है। हेलो, इस चीज, हाँ जी हाँ मैम, कॉलेज में तो ओपन कोर्स का कोई प्रावधान ही नहीं है UGC के अकॉर्डिंग, तो आप ओपन कैसे करवा रही हैं? हमारा ओपन नहीं है भाई साहब, मैं वही तो बता रही हूँ कि हमारा वो रेगुलर कोर्स है और वो डिपार्टमेंट में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, उसका नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में होना चाहिए। और जो आपने कोर्स बता रहे हैं कि आपके यहाँ रेगुलर में भी एडमिशन होते हैं, तभी तो हम पूछ रहे हैं। एडमिशन होते हैं भाई साहब, तो गवर्नमेंट एक न्यू कोर्स यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है और उसका नाम है बीकॉम वोकेशनल, और वो होना चाहिए टॉप डाउन। बीकॉम वोकेशनल, ठीक है मैम, आप मेल कर दीजिए, हम ऐड करा लेंगे इसे, आप मेल कर दीजिए। 5993। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी प्लीज, मेरे 59932 C59932 C59932 और बीकॉम वोकेशनल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिस शुड बी इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसको नताशा को कैसे ओके, ठीक है जी, ये डलवा दीजिए, हमने मेल भी डाली है, दिस इज मैंडेटरी फॉर अस। अच्छा दूसरी चीज ये है, मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन शहजादपुर से, और दूसरी चीज जो तो ये है कि जैसे जो हमारे, जब मैं प्रिंसिपल नहीं थी तो मैं अपने कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला में फर्स्ट नोडल ऑफिसर में ही थी, और बड़े साल मैंने भरा है, लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें जैसे 80 कैंडिडेट्स के लिए आता है नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड, नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड, लेकिन होता है क्या है कई बार कि जितनी अलॉटेड है, सपोज 17 में से 100 में से 17 सीट SC का अलॉटेड है, जब कैटेगरी चेंज होती है उसमें भी आ जाते हैं, कई बार 17 अलॉटेड है और एडमिट 20 होते हैं, तो हमने कौन सा लेना है उसमें? होते 17 पर लेते 20 हैं। हेलो, मेरे पास 100 सीट्स है मान लो, उसमें हाँ जी मैं बोल रही हूँ 100 सीट्स है मान लो, तो ऊपर से 15 जो हैं वो ऑल इंडिया कैटेगरी में आती हैं, तो कई बार जो SC बच्चा है वो उधर भी आ सकता है ना। तो उसके बाद कई बार होता है कि हमारे पास 100 सीट्स हैं, 90 सीट्स फिल हुई, उसके बाद ओपन कैटेगरी में फिल हो रही हैं, उसमें भी आ जाता है, तो एडमिट वो ज्यादा हुए, तो हमने कौन सा जो सीट अलॉटेड में आई है इसको टोटल रिजर्व्ड कैटेगरी वाले एडमिट हुए वो डालने हैं। पहले तो आप मैम टोटल डालिएगा ना, फिर आप उसका बाइफरकेशन कीजिएगा।
नहीं, आप मेरा क्वेश्चन जो है वो टोटल तो सीट्स है मान लीजिए 100, हाँ उसमें से 17 बच्चे 15 बच्चे हमारे हो गए ओपन कैटेगरी के, ठीक है, जो ऑल इंडिया लेवल के हो गए। कई बार होता है कि एससी बच्चा उसमें भी आ जाता है, तो 17 उसमें से हमारे को अलॉट हुई सीट्स एससी के लिए, सपोज एससी ए के लिए। अब वो जो टोटल एडमिट हुए वो हो सकता है 19 हो गए, 2 उसमें आ गए थे, तो मैम हमने हमने उसमें एनरोलमेंट से के टाइम वो पे तो पूछा ही नहीं ना कि ऑल इंडिया से आए कि कहाँ से आए। मैम टोटल जो बच्चे आपके यहाँ जो इनरोल्ड हुए हैं, जितने एससी इनरोल्ड हुए चाहे जिस कैटेगरी में, वो आप एससी का एससी में फिल करेंगे, एसटी का एससी में फिल करेंगे। नहीं, दैट इज राइट, एससी एससी में बाइफर्केशन लेकिन मैम बस मेरा जो कैटेगरी क्वेश्चन वाइज है करना और प्लीज किसी आप वाइज नहीं एक करना, ऑल इंडिया वाइज नहीं करना, कोई स्टेट लेवल एग्जाम है उस वाइज अच्छा नहीं करना, सिर्फ आपको कैटेगरी वाइज करना है, एसटी एससी ओबीसी अदर माइनॉरिटी। ये पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ इस प्रोग्राम में टोटल बच्चे किस कैटेगरी के कितने इनरोल्ड हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फिल कीजिए। एनरोलमेंट देखना है। नहीं उसमें अब आप मेरे क्वेश्चन, एक मिनट, कि हमारे को आपने ये भी कहा है कि इस कैटेगरी में कितनी सीट्स अलॉटेड हैं, ठीक है, एससी में सीट्स अलॉटेड है मान लीजिए 20, हाँ मैम, और टोटल बच्चे जो एडमिट हुए हैं एससी वो 22। हाँ जी, तो ठीक है, उस तो पर उसमें अगर 22 fill यदि करेंगे। आपको ये कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो अभी आंसर दे रहे हैं वो फिल करिए, उसके बाद यदि आपके पर कोई ठीक है जी, क्वेरी होती है तो फिर आप बताइएगा कि ऐसे में हमें यही बताया गया था। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और है कि जब हम रिजल्ट फिल करते हैं तो वो भी हम टोटल बच्चों पे जो जब रिजल्ट फिल करते हैं तो वो जो रिजल्ट फिल करते हैं वो 6 सेमेस्टर्स का रिजल्ट्स की हमें देखना है कितने पास है नहीं लास्ट ईयर का, सिर्फ फाइनल ईयर का, कि जिस रिजल्ट के बाद बच्चा जो है आपके इंस्टीट्यूशन से बाहर चले जाएंगे, सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट फिल करना है। हाँ जी मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। सवाल मेरे पास कुछ और भी है, थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, थैंक यू जी। हेलो हेलो, जी गुड मॉर्निंग सर, मैं शिला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बोल रही हूँ। जी बताइए। सर हमारा कोड है S18328। सर हमें स्टूडेंट एनरोलमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। S18328। यस सर। क्या इशू आ रहा है बताइए। सर इसमें हम फिल नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें कोर्सेज शो नहीं हो रहे हैं। कोर्सेज शो नहीं हो रहे सर? मैम प्रोग्राम को आपने लॉक किया है? हाँ जी सर, बिल्कुल किया है। मैम स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको चेक कीजिए, है ना। बिल्कुल सर। मैम ऐड न्यू एंट्री का ऑप्शन आ रहा है सामने, दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है सर। इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर सारे के सारे आपके प्रोग्राम आ रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिविल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अदर इंजीनियरिंग, सारे आ रहे हैं। सर आपके पास शो हो रहा है पर मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं हो रहा है सर। मैम बता तो रहा हूँ, मैंने पहला पॉइंट आपको यही बता दिया ना, ऐड न्यू एंट्री कीजिए। ऐड न्यू एंट्री, हाँ स्टूडेंट एनरोलमेंट पे जाइए, आप ड्रॉप डाउन में पहले चेक करेंगे, यहाँ देखो एक भी नहीं आ रहा, ड्रॉप डाउन में कुछ भी विजिबल नहीं है। ये ऐड न्यू एंट्री का बटन है, क्योंकि यहाँ पे वो तो ये फिल्टर दे रखा है जो आपके नीचे लिस्ट आ रही है। ओके सर। तो लिस्ट तो अभी आपकी अवेलेबल ही नहीं है ना, आपने ऐड ही नहीं किया तो आप फिल्टर कैसे कर सकते हैं। तो आप पहले ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक कीजिए, यहाँ डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज कीजिए, ठीक है, या ईयर वाइज फर्स्ट ईयर आप ऐड कीजिए, फिर सिमिलरली सेकंड ईयर, सिमिलरली थर्ड ईयर, ठीक है। ओके सर। सर एक क्वेरी और थी। मैम डिप्लोमा 3 साल का कहाँ से होता है ये सर HSBC से। ये 3 साल का है? हाँ जी सर, डिप्लोमा मैकेनिकल। ठीक है। हेलो हाँ जी सर, एक क्वेरी और थी हमारे पास सर। पहले एक कोड होता 328366 जो कि डीएक्टिवेट हो गया है। डीएक्टिवेट हो गया तो एसएनओ को कांटेक्ट कीजिए। आप स्टैंड अलोन है? सर स्टैंड अलोन नहीं था एक्चुअली, जिसने पहले फिल किया था। आपका आईशे कोड क्या है? आप आईशे कोड बताइए पहले, आप अपना आईशे कोड बताइए। हमारा सर S18328। 18328। सर मैम आपका एआईसीटी का डॉक्यूमेंट होगा, एफिलिएशन लेटर होगा 21-22 का, आप वो लगाइए, एक रिक्वेस्ट लेटर लगाइए अपने इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पे, और हमें आईशे हेल्प डेस्क पे मेल कीजिए। ठीक है सर। ठीक है। तो ये सर स्टैंड अलोन से कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा? जी मैम।
स्टैंड अलोन से कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा सर, जो कि पहले हाँ, हमारे जितने भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हैं जो अभी डिग्री प्रोग्राम रन करवाने लगे हैं, तो उन्हें नए कोड के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो हमें अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आयशा हेल्प डेस्क पे अपने एफिलिएशन लेटर के साथ कि किस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड हैं, तो हम उस कोड को कन्वर्ट करके कॉलेज में कर देंगे। उनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है सर, तो मैं आपको मेल कर देती हूँ सर हेल्प जी, आयशा हेल्प डेस्क पे मेल डालिएगा अपने आयशा कोड के साथ में, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। हेलो। हाँ जी। S967 से सर। जी सर बताइए। सर मैंने पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन, बट इसमें ये चीजें हो नहीं रही। ये जो डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम में है, हाँ, इसके अंदर सर जो हमने ऐड कर दिए, उसमें जो प्रोग्राम आपने बोला सर कि मर्ज कर दो, इसके अंदर एक वर्ड है ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप नेम। हाँ जी। उसमें ब्रांच वाइज ही चलना है सर हमें। उसमें अलग अलग आ रहा है, सिविल का आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। अगर सेपरेटली सर आ रहा है तो आप वहाँ कर दीजिए फिर। बट वो जो 2 प्रोग्राम है सर, प्लीज आप अगर ओपन करके अदर का ऑप्शन भी तो होगा ना सर। हाँ, अदर में डाल दे सर, अदर इंजीनियरिंग लिखा हुआ। बिल्कुल सर। हाँ, तो अगर अदर इंजीनियरिंग सर 2 हो जाएंगे तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी। दोनों को कंबाइन करके कर दीजिएगा ना सर। अच्छा, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। हाँ बिल्कुल सर। किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेम करेक्शन का इशू होता है तो अपने एसएनओ को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास भी अथॉरिटी है नेम अपडेट करने के लिए। हेलो, नमस्कार सर। Any other query of any institution? Related to the name correction, related to the change of the university, district, anything. सर ये क्यूरी तो नहीं है, एक सजेशन है कि इसमें एक ऐसा फॉर्म अपन बना दें जिसमें कोई सजेशन डालना हो या कोई अनदर जो है इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में देनी हो, तो खाली फॉर्म में उसमें टाइप कर दें या अपनी जो है चीजें लिख दें। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन हम ले ही लेते हैं अपने वेब डीसीएफ के अंदर। चलो सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जो टीचिंग स्टाफ की डिटेल है ना, जो यूनिवर्सिटी रूम सिर्फ उसी की डिटेल डालनी है ना, स्टाफ डिटेल्स में, टीचिंग स्टाफ डिटेल्स में। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों डालनी है। नहीं, नॉन टीचिंग भी डालनी है, बट जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है जिसकी हमारी वो होती है बजटेड पोस्ट पे, वही डालनी है ना। वही डालनी है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो कॉन्ट्रेक्चुअल में डालिए, ऑप्शन तो वहाँ अवेलेबल है। कॉन्ट्रेक्चुअल का डालना है? हाँ जी, सारे डेजिग्नेशन वाइज आप वहाँ डालना है ना, ऑप्शन अवेलेबल है, आप चेक कीजिए एक बार। ओके सर, ओके जी। सर सिपेट मुर्सल हाँ जी सोनीपत बताइए। हरियाणा, नेम करेक्शन का भी आप पूछ रहे थे। हमारे कॉलेज का भी हमने नेम चेंज किया है, पहले प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था, अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कब से हुआ है सर? 22-23 से हुआ है कि 21-22 से हुआ है? 21-22 से सर। ठीक है सर, तो अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं? बिल्कुल सर, लेटेस्ट एफिलिएशन लेटर 21-22 का, जिसमें आपका नेम अपडेटेड है, वो जिसमें एआईसीटी का है, वो बिल्कुल लेटर सर। भेज दें उनको। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी ऑफ एनी सर एक क्वेरी और है, जब भी मैंने अभी पहले भी बात किया था, अभी जो हमारा डिप्लोमा 3 इयर्स वाला है, पर हाँ जी। एनरोलमेंट में 2 ईयर ही शो कर रहा है। सर एनरोलमेंट ईयर ऑफ स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने क्या डाला है, आपको चेक कीजिए ना। वो तो 2010 से पहले का ही है सर। तो सर अगर आपने प्रोग्राम की ड्यूरेशन 3 साल डाली हुई है और ईयर ऑफ स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने बिफोर 2010 डाला हुआ है, तो 3 ईयर का ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो 3 ईयर का ही है प्रोग्राम डिप्लोमा, हाँ, लेकिन जब हम आगे स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल फिलअप करते हैं तो वहां पे जो ड्यूरेशन दिखाता है
वहाँ पे 2 ईयर दिखा रहा है, तो मैं कैसे 3 इयर्स का वहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट फिलअप करूँ? सर एक मिनट चेक कर लेता हूँ सर प्लीज ये करेक्शन कर कोड दीजिए। कोड बताइए सर। S932। S932। हाँ जी सर, देखिए अभी एनरोलमेंट में जाए सर। एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, है ना? प्लीज सर बताइए सर, एनरोलमेंट पे आ गए? हाँ जी सर, यहाँ पे देखिए एक एनरोलमेंट से आपको पहले हम first प्रोग्राम year पे आते हैं ना सर? हाँ सर, पहले प्रोग्राम देखिए, हमारे ना 4 प्रोग्राम है सर। बिल्कुल सर, कौन से वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप? सीरियल सर देखिए बताइए। पहले 2 प्रोग्राम जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट नेम भी नहीं आ रहा, आपने बोला कंबाइंड कर देना चाहिए। हाँ सर। तो ये 2 अलग अलग हैं सर, दोनों 3-3 साल के प्रोग्राम है। ठीक है सर। अब इसमें सपोज किसी अब डाटा तो दोनों का कंबाइंड करके डालना है या अलग अलग, ये पहले तो यही कंफ्यूजन है सर। सर 2 अलग अलग ऑप्शन है, आपने 2 अलग अलग प्रोग्राम डाले हैं सर, तो दोनों का अलग अलग जाएगा ना? अलग अलग जाएगा, अलग अलग जाता नहीं है सर, क्योंकि ये क्योंकि सर discipline आपने वाला- पहला वाला जो किया है उसका ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप नेम आपने डाल रखा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरे हाँ जी, का हाँ डाल जी। रखा है अदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि सर डेक का नाम है डीपीटी कोर्स, एक डीपीएमटी, वो आ ही नहीं रहा लिस्ट में वहाँ पे। है तो डिप्लोमा प्रोग्राम ना सर? हाँ है डिप्लोमा प्रोग्राम सर। हाँ सर, तो दोनों को अलग अलग डालिएगा। अब इसमें आप ये कौन सा दोनों कह रहे अलग थे हो गए, कि एक इसमें इंजीनियरिंग सर हो 3 गया, एक साल का अदर प्रोग्राम है, 2 साल इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ रहा है सर, इसमें आप बता रहे थे। हाँ सर। अब देखिए एक्चुअल में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अदर इंजीनियरिंग करना पड़ा, क्योंकि वहाँ डीपीटी डीपीएमटी नहीं आ रहा था। ये देखिए सर, इंजीनियरिंग हाँ टेक्नोलॉजी सर है, जी। यहाँ पे हाँ जी ईयर के जी। अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ और सिमिलरली सर अगर हम बात करें अदर इंजीनियरिंग की, हाँ तो जी। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ रहे हैं सर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पर तो नीचे तीनों का देखिए सेपरेटली सर, आप थोड़ा सा डालिए। इसको नीचे करिए सर, स्क्रीन इसको को सर? थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए सर। ड्यूरेशन में देखिए सर, ड्यूरेशन देखिए 2 ईयर लिखा आ रहा है, ड्यूरेशन 2 ईयर 0 मंथ। सर ड्यूरेशन 2 ईयर नहीं आ रहा सर, ये सेकंड ईयर की आपने एंट्री कर रखी है, इसकी फर्स्ट ईयर आप और डालेंगे, इसकी थर्ड ईयर और डालेंगे। मैंने तो फर्स्ट ईयर की डाली थी, पर ये ऑटोमेटिक कैसे सेकंड ईयर ले लिया सर? अभी अगर सर अगर आपने डाल रखी होगी तो फिर डुप्लीकेट एंट्री लेगा नहीं है। वही तो है सर, ये फर्स्ट ईयर की डाली और बाद में जब सेकंड ईयर के लिए करने लगा तो लिया ही नहीं, बोला डुप्लीकेट एंट्री, और नीचे 2 ईयर दिखाने लगा। अभी सर देखिए मैंने फर्स्ट ईयर को ऐड किया, तो फर्स्ट ईयर आ गया, आपने सेकंड ईयर की एंट्री पहले से कर रखी थी, दैट मींस कि यहाँ जी पे फर्स्ट जी ईयर की एंट्री अवेलेबल थी ही नहीं। अच्छा जी। जी सर। अब आगे थर्ड ईयर भी हो जाएगी। सिमिलरली सर मैं यहाँ पे थर्ड ईयर को एज ए 0 एंट्री ऐड कर देता हूँ, आप मॉडिफाई कर लेना इसे सर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों आ गए सर यहाँ पे। ठीक है, तो सर हमारा जो कोर्स का पार्टिकुलर नेम है वो नहीं आ रहा, तो इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग करके ही चलेगा? कौन सा प्रोग्राम सर, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला? हाँ एक्चुअल में ये कोई नाम तो होता नहीं, नाम तो डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, पर वो लिस्ट में तो है नहीं। तो अदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा ये? तो अदर में ही चल, तो एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक अदर में। हाँ सर। ठीक है सर, कोई नहीं। ठीक है सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बीच में कर तो सोच लिए तेरे हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं कोमल बात कर रही हूँ। जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी बस कि जो ये फिल करते हैं हम, सारा ऑनलाइन होता है या सर पहले जैसे पीडीएफ फॉर्म में इसको मतलब? बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सर ये मतलब जो डेटा फिल होता है इस पे, ये सारा ऑनलाइन ही फिल होता है या पहले हम प्री फिल करके फिर बाद में एकदम से ऑनलाइन इसको सारा फिल कर सकते हैं? एक मिनट में आप बताइए आप। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो डेटा फिल करते हैं सारा ऑनलाइन ही फिल होता है या कुछ ऐसा इसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम नहीं पहले फिल कर ले? इट इज बेसिकली अ वेब डीसीएल, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करके सेव करके लॉक करनी पड़ेगी, है ना? ओके, ऐसा नहीं है सर कि जैसे पहले हम सारा का सारा जो भी डेटा इंफॉर्मेशन मैम वो 2 साल पहले होता था। ओके ओके सर, सारा ऑनलाइन ही, और उसको लॉक करते रहे, सेव करते रहे, और सर इसको अगर अपडेट करना हो, मान लो लॉक भी कर दिया हमने जी और फिर उसको अपडेट करना हो जी तो मॉडिफाई करना हो तो हो जाता है आप हमें अप्रोच कर सकते हैं एक बार फाइनल सबमिट के बाद।
ओके आपके सर। नहीं DCF को अनलॉक सर, करने के इसमें जैसे एक बार लॉक सेव कर दिया और उसके बाद लॉक कर दिया, मैम हम आप 100 उसको बार सेव लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप फाइनल सबमिट ना कर लें। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी मंजू शर्मा मैम। हाँ एनी अदर क्वेरी? आई थिंक सबकी क्वेरीज रिमूव हो गई हैं। स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना था। हाँ तो एप्लीकेशन वगैरह लिखो, प्रोसेस। हेलो, पिछली बार जब जी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते ना, उसी को देख के मैं कॉल बैक करता हूं। एप्लीकेशन क्या स्कॉलरशिप ये नहीं, स्कॉलरशिप के लिए मुझे ओके फिनिश कर दें फिर आज का सेशन। हेलो हेलो आप बोल रहे हो, सुन रहा है सभी को। हेलो, इसके किसी अलावा को अगर किसी की कोई क्वेरी आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं, सारे सोल्यूशन आपको वहां से मिल जाएंगे। जैसे आपने भी कहा। हाँ जी, आई थिंक ये सेशन फिनिश करना चाहिए। हेलो हेलो, आज की इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी भविष्य में ऐसी मीटिंगें चलती रहेंगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आपको मेल के माध्यम से भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हेल्प डेस्क पे भी कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद और इस मीटिंग के समापन की परमिशन मिल गई है। धन्यवाद। can leave the mail. कर दो। Okay, thank you.